Hello dear students, this is Mukhtar sir and I welcome all of you here with new concept that is nervous coordination and integration in animals. ठीक है, nervous coordination and integration in animals. As you know, there is a regulation and control mechanism in individuals in order to govern the physiological processes and also the net growth and developmental processes in individuals. ठीक है, an organism carries out large number of physiological functions. ठीक है, तो which not only influence each other but also influences the functioning of an organism, right? Therefore they require a regulation and control. वहां पे कोई regulation mechanism होना चाहिए और control phenomena होना चाहिए. ठीक है, ताकि हर एक एक्टिविटी जो है वो ऑप्टिमम रिक्वायर्ड कंडीशन तक ही महदूद रहेगी है. ठीक है, तो बाय चेंजिंग द वेरिएबल्स राइट लाइक रेट, अमाउंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा. सो रेगुलेशन हेल्प्स इन एडजस्टमेंट. ठीक है, रेगुलेशन हेल्प्स इन एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू चेंज्ड कंडीशंस. For example, rate of breathing, intake of oxygen, and exhalation of carbon dioxide depends upon the physical activity of an animal. So, in nutshell, these, regulation and control of these activities, physiological activities, performed by various organs within the individual or various cells within the individual, are coordinated and regulated in a particular manner and that is known as coordination. तो कोऑर्डिनेशन के दो किस्में हैं, एक तो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, दूसरा एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन है. नर्वस कोऑर्डिनेशन means the coordination of physiological activities, control and regulation of physiological activities performed by various organs to work together as a unit. ठीक है, to work together as a unit, that is known as nervous coordination. तो क्या है नर्वस कोऑर्डिनेशन? इट इज द रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस performed by the different organs or cells to work together as a unit. That is, nervous coordination. It is regulation and control of physiological processes performed by different organs or cells to work together as a unit by nervous system. That is nervous coordination. ठीक है, तो नर्वस सिस्टम नर्वस कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है और एंडोक्राइन सिस्टम जो है एंडोक्राइन हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को रेगुलेट करता है. तभी जाके डिफरेंट ऑर्गन्स और सेल्स जो है दे वर्क टुगेदर एज ए यूनिट फॉर द परफेक्शन ऑफ द सर्वाइबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है दैट इज नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम, as you know, it is a system of specialized organs, nerves and their branches which take part in coordinating and controlling activities of different organs and systems of a body so that it behaves as an integrated unit. ठीक है, it behaves as an integrated whole which can show adjustment to both internal and external conditions. ठीक है, that is nervous system. So nutshell we can say
It is a system of specialized organs. It is a system of specialized organs न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी बोलते हैं. It is a system of specialized organs, neurons, and their branches, and their branches, ठीक है, which take part in coordination and controlling activities of different organs, which take part in coordination and controlling the activities of different organs so as to work together as a unit. ठीक है, for the maintenance of growth and development, or for the perpetuation of survivability of the system. So nervous system is a system of specialized organs, neurons, nerve cells, and their branches, which take part in coordination and controlling activities of different organs so as to work together as a unit for the perpetuation of survivability of the system. That is known as nervous system. So nervous system in humans plays a very important role. As far as the humans are concerned, nervous system in humans or other organisms plays a vital role. They perform various functions, just like sensation, awareness, memory, interpretation. Nervous system जो है, it plays a vital role in sensation. It plays a role in awareness. Awareness plays a role. Memory plays a role in interpretation. It plays a role in coordination. Control. Coordination and control. Internal changes को maintained रहता है. Internal changes. It plays a role in homeostasis. शाबाश. Homeostasis, ठीक है. Harmful sensation, etc. These are the major role played by nervous system. Before proceeding towards the whole nervous system, let me say you one thing, that they are wholly and solely the structural and functional unit of nervous system, that is neuron. इसको nerve cell भी बोलते हैं. Nerve cell. Neuron or nerve cell is the structural and functional unit of nervous system. ठीक है. तो न्यूरॉन जो है, that is structural and functional unit of nervous system. A typical neuron usually has three components, that is cell body or a cyton, dendron or dendrites, and axon. ठीक है. Typical जो है nerve cell जो है और neuron,
दैट इज, अगर न्यूरॉन की बात करेंगे हम यहाँ पे, और नर्व सेल, it has components of nerve cell. Usually typical nerve cell में 3 components होते हैं. First component is cell body. Cell body, इसको साइटॉन भी बोलते हैं, सोमा भी बोलते हैं, ठीक है. सेकेंड कंपोनेंट इज डेंड्रॉन या डेंड्राइटस, ठीक है, डेंड्रोनस और डेंड्राइटस. थर्ड कंपोनेंट जो है दैट इज एक्सॉन, दैट इज एक्सॉन. तो टिपिकली nerve cell has following parts: cell body or a cyton, dendron, dendronus या dendrites, and next one जो है that is axon. जो axon है इसको nerve fiber भी बोलते हैं. Ensheathed axon is called a nerve fiber, ठीक है. तो that is, these are main components of nerve cell, typical nerve cell, ठीक है. जिस nerve cell में polarity होती है, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत इस तरह nerve cell को बनाया जाता है, तो nerve cell में क्या है, nerve cell में एक cell body होती है इस तरह. ये एक प्रोसेस है दैट इज एक्सॉन प्रोसेस. इस तरह होता है बेसिक स्ट्रक्चर. एक्सॉन फाइबर, एक्सॉन हिलाक, दैट इज, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज साइटॉन और मेन बॉडी, इसको सोमा भी बोलते हैं. दिस पार्ट इज नोन एज साइटॉन, ठीक है. तो इस साइटॉन को सेल बॉडी भी कहा जाता है. सेल बॉडी, सेल की बॉडी है. तो यहाँ पे ये जो पार्ट है नैरो फाइबर लाइक पार्ट, दैट इज एक्सॉन, एंड दिस वन इज dendritus or dendronus, you can say dendronus, that is dendron here. ये जो साइटॉन है it bears a nucleus here. तो पेरीन्यूक्लियर पार्ट में यहाँ पे कैसेफेलोइड मैट्रिक्स है, कैसेफेलोइड मैट्रिक्स, दैट इज न्यूरोप्लाज्म. इसको न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं. न्यूरोप्लाज्म, साइटो, इट मीन्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल, ठीक है. साइटोप्लाज्म ऑफ नर्व सेल इज न्यूरोप्लाज्म. तो यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स होते हैं पेरीन्यूक्लियर पार्ट में, उनको बोलते हैं सबस्टेंशियो बेसोफिलिया. सबस्टेंशियो बेसोफिलिया, सबस्टेंशियो बेसोफिलिया को निस्लस ग्रैन्युलस भी बोलते हैं. निस्लस ग्रैन्युलस, दे हैव अ मेजर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस में निस्लस ग्रैन्युलस जो होते हैं उनको they play a role in protein synthesis, ठीक है. तो these are substantia basophilia, ठीक है. these are also known as substantia basophilia, Nisslus granulus. तो और
अदर टाइप्स ऑफ सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं इसमें। तो मेन बॉडी से यहाँ पे अगर पोलरिटी है इन द फॉर्म ऑफ, अगर एक टिपिकल पोलर न्यूरॉन फाइबर है, तब यहाँ पे जाके प्रोसेसेस अराइज होते हैं, एंड दीज प्रोसेसेस आर नोन एज डेंड्रॉन्स। ठीक है, तो डेंड्रॉन के यानी कि साइटॉन के इस वाले साइड में एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, लॉन्ग आर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही नैरो होती है, और उस आर्म को बोलते हैं एक्सॉन। तो ये एक्सॉन में अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, अगर माइलिन शीथ फैटी शीथ किसी किसी जगह पे पाया जाता है, तब इसको मेडुलेटेड नर्व फाइबर बोलते हैं, मेडुलेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, मेडुलेटेड नर्व फाइबर आर माइलिन शीथ, दैट इज अ माइलिन शीथ हियर। ठीक है, माइलिन शीथ that makes the myelinated nerve fiber। अगर ये एक्सॉन माइलिन शीथ है, and then this nerve fiber wholly and solely is known as myelinated or mutilated nerve fiber। ठीक है, तो myelin sheath is absent at places। ठीक है, यहाँ पे this is not the continuous, this is absent at certain places। तो उन प्लेसेस को नोड्स ऑफ रेनवर बोलते हैं। ठीक है, नोड्स ऑफ रेनवर, तो क्या है नोड्स ऑफ रेनवर? नोड्स ऑफ रेनवर्स आर द प्लेसेस और द एक्सॉन फाइबर वेयर माइलिन शीथ इज एब्सेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि माइलिन शीथ कंटिन्यूस क्यों नहीं है माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में। ठीक है, वो इसलिए कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि जहाँ जहाँ पे माइलिन शीथ है वहाँ पे नर्व फाइबर, नर्व इम्पल्स जो है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन डिपोलराइज्ड वेव और एक्शन पोटेंशियल, ये माइग्रेट नहीं करेगा क्योंकि वो अयानिक पोटेंशियल होता है। वो नर्व इम्पल्स जो होती है, जो सिग्नल होती है, वो चलती है in the form of electrochemical potential, in the form of a depolarized wave of ions। तो यहाँ पे जहाँ पे माइलिन शीथ है वहाँ पे न्यूट्रलिटी है। You know that the myelin sheath, it is a lipid content and that is a new non-polar substance, तो ये allow नहीं करेगा। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे अब चलेगी? नोड टू नोड, नोड टू नोड चलेगी, नोड टू नोड सिग्नल जाएगी। जब नोड टू नोड सिग्नल जाएगी तो कुछ प्लेसेस जो है, कुछ डिस्टेंस जो है वो बच जाए, मतलब ये वो बच जाएगी। यहाँ पे वो उनको पूरी डिस्टेंस नहीं कवर करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ वाई दिस टेक्स लेस टाइम, दिस सिग्नल थ्रू माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स टेक्स लेस टाइम एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड और नॉन मिडिलेटेड नर्व फाइबर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीथ होता है, तो माइलिन शीट के थ्रू नर्व फाइबर जो है वहाँ पे सिग्नल नहीं जाएगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रलिटी जो है, व्हाट वी कॉल इट्स ये नॉन पोलर होता है, ये पोलैरिटी नहीं है वहाँ पे। जहाँ जहाँ पे अब पोलैरिटी है वहाँ वहाँ से सिग्नल होके जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिटेटरी मैनर। ठीक है, सॉलिटेटरी, इसको सॉलिटेटरी मूवमेंट ऑफ दिस सॉलिटेटरी सिग्नल बोलते हैं, यानी कि सिग्नल थ्रू द माइलिनेटेड इज सॉलिटरी वन, यानी कि ये जंप करता है नोड टू नोड, नोड टू नोड, नोड टू नोड, यानी कि नोड ऑफ रेनवर टू नोड ऑफ रेनवर। तो नोड ऑफ रेनवर टू नोड ऑफ रेनवर जब सिग्नल जाती है तो होल डिस्टेंस वो नहीं कवर करनी पड़ेगी। तो विद द रिजल्ट व्हेन डिस्टेंस इज स्मॉल देन वेलोसिटी इंक्रीजेस विद द सेम टाइम। ठीक है, अगर वेलोसिटी इंक्रीज कैसे होती है? अब डिस्टेंस, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो इसका मतलब है इसको कम ही टाइम लगेगा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने में। तो नोड्स ऑफ रेनवर का यही फंडा है। ठीक है, बट बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द एक्चुअल एंड एग्जैक्ट एंड टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, let me explain first
टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो ये न्यूरॉन जो है ये मैं आपको सेपरेटली मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में आपको बोलना चाहता हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो वो चीज़ें पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, टिपिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या है, यहाँ पे हेडिंग है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स or nerve cells on the basis of neurofibers या on the basis of number of processes on the basis of number of processes के on the basis of number of processes neurons has been classified into 4 types। 4 टाइप्स है न्यूरॉन्स के, ठीक है, 4 टाइप्स है न्यूरॉन्स के ऑन द बेस ऑफ दिस। वन इज एपोलर न्यूरॉन, एपोलर न्यूरॉन। सेकंड इज यूनिपोलर न्यूरॉन, यूनिपोलर न्यूरॉन। थर्ड वन इज बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन। एंड लास्ट वन इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो बाइपोलर, सीडो यूनिपोलर भी होता है, सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन भी है। तो यहाँ पे सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। इन्हीं न्यूरॉन्स का जो है हम आज पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वन जो है दैट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। एपोलर, यूनिपोलर, बाइपोलर, सीडो यूनिपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो इसको हम कल पढ़ेंगे वन बाय वन। तब तक के लिए खुदा हाफिज।